Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. Now there is a consistent request. Sir, guide us for LIC Assistant Examination also, as well as LIC AO exam. So in this video, we will discuss some aspect of LIC Assistant exam. First thing, in LIC, the exam is conducted division-wise. So the exam pattern is different for different divisions. For Hindi-speaking areas, the pattern is different. For non-Hindi states, the pattern is different. So now, whether they will adopt the same pattern of 2019 or not, this is not clear. But we can assume that more or less the pattern will be similar. So we will discuss in this video what was the pattern in 2019. In 2019, they adopted one pattern for non-Hindi speaking areas. In Prim, the papers were English/Hindi language, choice, either you prepare English or Hindi, numerical ability, reasoning ability. But in mains, there were 4 papers: general awareness, financial awareness, general English, quantitative aptitude, reasoning and computer. Here marks were for general awareness 50, general English 40, quantitative aptitude 50, and reasoning and computer awareness 60. So there were only 4 sections. But for Hindi speaking area, there was one additional paper, that is Hindi paper. And all the 5 sections, that means 4 that I have listed for non-Hindi areas, plus Hindi language, the marks were 40 each. So for Hindi speaking area, Hindi paper played very crucial role. Very crucial role. So if you are preparing for LIC assistant, your preparation is on similar lines, that is of IBPS clerk, SBI junior associate or RRB office assistant. With minor modification that this level is slightly higher than bank clerk. So if we prepare for PO, the similar preparation can be useful for LIC assistant. The only additional preparation that we have to do is we have to read the insurance awareness. For that, I have given you a separate video. I will again place the link of that video in the description, also on the community and Telegram channel today. So you have to cover insurance awareness along with general and financial awareness. This is one aspect. Second aspect is, here is an exam of Hindi also for Hindi speaking area. So you have to prepare Hindi language as well as English language. So in pre there is a choice out of Hindi or English. But in main English is also there and Hindi is also there. So this is slight modification from regular bank exam, and that's why I say, if you have this knowledge well in advance that these notifications are likely to come, which month it will come, nobody can say with certainty. But as far my information is concerned, these exams will be held. So we should remain exam ready, and the same preparation will be useful for our banking examination. For that, time schedule is already there. So by preparing some additional subject, reading some additional material will only give me strength, give me first mover advantage. There is no harm in preparing. Since you wanted that I should discuss LIC assistant preparation, I am making this video. I am not making separate timetable schedule because the timetable is similar. So already we are running one timetable for clerical exam, one timetable for officer exam. You can follow this schedule with minor modification, focus on Hindi as well as focus on insurance awareness. That will serve your purpose for LIC assistant examination. So God bless you with success. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. LIC assistant की कैसे तैयारी करें, ये आप में से कुछ लोग बार बार मुझसे पूछ रहे हैं. अब इसमें देखो, इस जो LIC assistant है, इसमें peculiar चीज़ क्या है कि एग्जाम पैटर्न डिवीजन वाइज है. जो हिंदी स्पीकिंग एरियाज हैं उनका एक अलग पैटर्न है, जो नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज हैं उनका अलग पैटर्न है. नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया में जो प्री है
उसमें इंग्लिश और हिंदी में से आप चूज कर सकते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी है, रीजनिंग एबिलिटी है। 30 नंबर की लैंग्वेज है, 35 नंबर के दोनों पेपर है, 100 नंबर का प्री है आपका। तो ये हिंदी और नॉन हिंदी में सेम है प्री। पर जब मेन आता है तो वहाँ पर जो नॉन हिंदी एरियाज है वहाँ 4 पेपर है, हिंदी स्पीकिंग एरिया में 5 पेपर है। वहाँ 4 पेपर क्या है? जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस 50 नंबर का, जनरल इंग्लिश 40 नंबर की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 नंबर की, रीजनिंग एंड कंप्यूटर 60 नंबर का। तो ये आपका 200 नंबर का पेपर हो गया। जब वो हिंदी स्पीकिंग एरिया में पेपर लेते हैं तो वहाँ 5 पेपर हैं। जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस भी है, जनरल इंग्लिश भी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी है, रीजनिंग एंड कंप्यूटर्स भी है और हिंदी लैंग्वेज भी है। और पांचों सब्जेक्ट 40-40 नंबर के हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि जब आप हिंदी एरियाज में compete कर रहे हैं तो आपका कंपटीशन डिफरेंट है, आप नॉन हिंदी एरियाज में compete कर रहे हैं तो आपका कंपटीशन डिफरेंट है। अब ये लास्ट ईयर का पैटर्न है 2019 का। सेम पैटर्न इस बार कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देयर में भी चेंजेस, क्योंकि 2019 में बहुत सालों के बाद एग्जाम आया था और आपके इस चैनल ने सबसे पहले ये न्यूज़ ब्रेक की थी। उस बार भी बहुत बातें सुनने को मिली थी, बहुत लोगों ने कहा ये फेक है न्यूज़, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये है वो है। अल्टीमेटली वो एग्ज़ाम हुआ और जिन लोगों ने विश्वास किया आज वो LIC में नौकरी कर रहे हैं, और जो इन बातों में पड़ गए पता नहीं होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, बाद में बहुत पछताए, बाद में सॉरी भी कहते रहे, बाद में ये भी कहते रहे सर हम आपका कहना मान लेते तो आज हम पास कर लेते। उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता। जब चीज़ हाथ से निकल जाती है ना, जितना मर्जी पश्चाताप कर लें आप, कोई आपको वो नौकरी नहीं ला सकता। अब देखो जिसकी 2019 के हिसाब से नौकरी लग गई 2020 में, 2022 तक वो 10 लाख रुपए कमा चुका है, कम से कम ज़्यादा कमा गया होगा 2 साल में। पर सिर्फ उसने इस चैनल की बात के ऊपर भरोसा किया, अग्रवाल जी पे भरोसा किया। अगर वो इस तरह के बातों पे आ जाता ना कि नहीं आएगा नहीं आएगा, वो बेचारा आज भी अनएम्प्लॉयड होता। ये आपके ऊपर है, ठीक है। अच्छी बात को समझना, अच्छे लोगों की कदर करना हर आदमी के बस का काम नहीं है। ये बहुत मुश्किल काम होता है, अच्छे लोगों की कदर करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जिसके अंदर आर्ट होती है वही ज़िंदगी का मज़ा ले पाता है। तो अपने जो एग्ज़ाम है 2019 का पैटर्न मैंने आपको बता दिया। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने करना क्या है, कुछ एक्स्ट्रा तो करना नहीं है। हम ऑलरेडी बैंकिंग के टाइम टेबल डाल रहे हैं मॉर्निंग में, क्लैरिकल का भी ऑफिसर का। आप ये समझ लीजिए दोनों के बीच का लेवल है। क्लैरिकल से स्लाइटली हायर है, PO से थोड़ा सा कम है। तो आप PO का शेड्यूल फॉलो कर लो, साथ में हिंदी लैंग्वेज की तैयारी कर लो, साथ में इंश्योरेंस अवेयरनेस जरूर कर लो। इंश्योरेंस अवेयरनेस लास्ट टाइम भी मैंने लोगों को बताया था, कईयों ने कहा सर उन्होंने लिखा नहीं है, नहीं आएगा। मैंने कहा था आएगा। जिन्होंने इंश्योरेंस अवेयरनेस कर ली थी मेरे कहने से वो फ़ायदे में रहे थे। इंश्योरेंस का एग्ज़ाम है, वो अपनी अवेयरनेस क्यों नहीं पूछेंगे? इंश्योरेंस अवेयरनेस करिए। इंश्योरेंस अवेयरनेस का क्या सोर्स है, मैंने एक वीडियो दिया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, फ्री है वो सोर्स, ठीक है। साथ ही साथ मैं कम्युनिटी पे भी डाल देता हूँ, टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देता हूँ। जो लोग पढ़ाई करना चाहते हैं कर लें साथ में, क्योंकि बैंकिंग एग्ज़ाम की ही तैयारी है, ये कोई अलग तैयारी नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा एडिशनल पढ़ना है, इसलिए कि जब ये एग्ज़ाम आ गया, नोटिफिकेशन आएगा, टाइम नहीं मिलेगा। ये मान के चलो आप, जो मर्जी लोग बातें करते रहे, अगर मैंने कुछ आपको बताया है तो उसका अर्थ है। और जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो समझदार हैं, वो समझते हैं इन्होंने अग्रवाल जी ने कहा है तो ऐसे नहीं कह दिया। और जिनको उड़ाना है मजाक उड़ाते रहे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। आपकी नौकरी नहीं मिलेगी, आपको नुकसान होगा। मेरा कहना मानने से आपकी नौकरी मिलेगी, आपका फ़ायदा होगा। मैंने तो आपसे कोई ना तो कोर्स बेचना है, ना आपसे कोई फ़ीस चार्ज करनी है, ये तो आपको पता ही है। तो मैं तो सिर्फ एक मिशन में लगा हुआ हूँ, 1 लाख लोगों की मदद करने में, नौकरी पाने में, और वो मैं करता रहूँगा। कोई मुझे क्रिटिसाइज़ करे, कोई मेरी तारीफ़ करे, मैं अपने रास्ते पे चलता रहूँगा। मैं तो बहुत ज़्यादा कंटेंटेड आदमी हूँ। मैंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत हाई पोजीशंस देखी हुई हैं और सब कुछ मैंने देख लिया है। मुझे छोटे मोटे क्रिटिसिज्म से कोई अंतर नहीं पड़ता, पर फिर भी मैं इसलिए उसको क्लैरिफाई करता रहता हूँ टाइम एंड अगेन, ताकि जो लोग उनकी बातों में आके भटक रहे हैं एटलीस्ट वो ना भटके। सिर्फ इसलिए कहता हूँ।
मुझे अपना कुछ जस्टिफाई नहीं करना, पर मैं उन लोगों को भटकने से बचाना चाहता हूँ जो इनोसेंट है, गरीब है, जिनको कोई मदद करने वाला नहीं है, जिनके पास कोई सूचना का रास्ता भी नहीं है, वो भटक ना जाए। इसलिए मैं बार बार इस बात को करता हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई मुझे अपनी गुडविल बनाने के लिए कुछ करना है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर मुझे पता है इस देश में बहुत मासूम लोग हैं, बहुत लोग हैं जो बेचारे इन लोगों की बातों में आके अपना कैरियर ख़राब कर डालेंगे, उनको मुझे बचाना है। इसलिए मैं बार बार इस बात को दोहरा देता हूँ कि चलो ऐसे लोगों को जो मासूम हैं उनकी मदद मिल जाए। गॉड ब्लेस यू।